अच्छा कहाँ था ऑर्गेनिक 1 सेकेंड अच्छा ठीक है ये ग्रुप आई हैव सेंड दिस ऑन द ग्रुप ठीक है वी आर ऑन पेज 6 तो वी वर सपोज टू डू दिस क्वेश्चन नाउ तो इस क्वेश्चन में इज आस्किंग के देयर टू एस्टर्स ठीक है दिस इज वेयर वी लेफ्ट ऑफ देयर टू एस्टर्स तो one is saturated and the other is unsaturated describe a test to distinguish between them तो क्या क्या टेस्ट होता है फॉर सैचुरेटेड का मतलब है कि सिंगल बॉन्ड्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स ठीक है अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड्स राइट तो उसका टेस्ट क्या था दैट इज अलीना क्या होगा टेस्ट दिस मींस इट्स डबल बॉन्ड एंड दिस मींस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का एक ही टेस्ट होता है दैट्स ब्रोमिनेशन ठीक है सो दैट्स व्हाट यू डू इज यू ऐड Br2 aqueous तो इफ इट्स गॉट अ डबल बॉन्ड तो क्या होगा कि ब्रोमीन उसमें ऐड हो जाएगा सो द रेड ऑरेंज ब्रोमीन और रेड ब्राउन ब्रोमीन it decolorizes और इसके अंदर नो रिएक्शन ठीक है अलीना क्लियर है Yes, sir. did you remember alkenes it's always bromination is the test did you switch one of the above esters is unsaturated वो कह रहा है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड है ठीक है so remember one thing कि the one that has the double bonds उसके पास H कम होते हैं like if I have ethane and I have ethene तो ethane will have more H's ethene carbon आपस में इतने bonds बना रहे हैं that there would be fewer H's bonded to the carbons ठीक है so this is C2H6 whenever you have a double bond the number of hydrogens they वो कम हो जाते हैं so over here one of them is तो किसके पास डबल बॉन्ड्स होंगे इट्स गोइंग टू बी दिस वन यहाँ पे क्या है C17H33 यहाँ पे C17H35 so this one has fewer H's तो इसका मतलब है probably has अगर दोनों में चॉइस करना पड़ा तो this one is the one that's got the double bond ठीक है it's ester 1 ठीक है is this clear Yes, sir. ठीक है because why because it's got fewer hydrogen atoms which indicates अच्छा वो indicates करता है which indicates presence of double bonds ठीक है तो हमें नहीं पता उसका स्ट्रक्चर क्या है लेकिन all I saw was कि this one has more H's and this one has fewer H's फिर both esters are hydrolyzed by boiling with aqueous in which what type of compounds are formed अच्छा remember ester को जब भी आप तोड़ते हो ना तो although he gave us a very complicated ester उससे बस type of compound पूछे is not asking you to name it तो when you break an ester ठीक है this is what an ester looks like तो इसको वापस अगर तोड़ते हो ना बीच में से so you get the carboxylic acid and you get the alcohol ठीक है वो अल्कोहल वापस बन जाता है ठीक है so that is hydrolysis of esters the first thing is you're going to get an alcohol and you're going to get the carboxylic acid lekin there are two ways of hydrolyzing an ester you can either have acid hydrolysis you add dilute acid any dilute acid like HCl or H2SO4 plus you heat or heat with reflux या दूसरी condition होती है you add a dilute alkene like in this case he's adding NaOH or heat या reflux
Now, if you add an alkali, तो carboxylic acid होता है, ठीक है? So what will happen is कि what will happen is that the carboxylic acid would end up reacting with the alkali. और वो जाके फिर एंड में NaOH के साथ रिएक्ट कर जाएगा ना, क्योंकि it's an acid based reaction. And what you'll get is you're not going to get the carboxylic acid, you'll eventually get a salt of the carboxylic acid. ठीक है? तो ये याद रखना कि एस्टर को तोड़ते you get alcohol and carboxylic acid back again. लेकिन with alkaline hydrolysis, what you get is you don't get the carboxylic acid, you get the salt of the carboxylic acid. और जिनको सोप्स कहते हैं, ठीक है? ये हमने नोट्स में जब एस्टर्स को वापस तोड़ा था ना, ये मैं साथ साथ असल में एक मसला बना हुआ इनमें. अच्छा, एस्टर्स को जब आप तोड़ते थे तो दिस इज व्हाट वुड हैपन, ठीक है? यहाँ पे सारा एक्सप्लेन है, ठीक है? दैट यू विल इन alkaline hydrolysis you'll eventually, that's called saponification, ठीक है? That's the production of soaps. Soaps में ये होता है, ठीक है? You have salts of carboxylic acid. ठीक है, इससे क्लियर? जी सर. अच्छा, ये वाला he's asking कि complete the table. Propanol will have how many carbons? 3. और उसमें क्या चीज़ अटैच्ड होगी? OH. और बाकी H उसके साथ कर लो. This one, the first one will have 3 H's. Second one will have 2 H's. 2 H's. उसका boiling point, you just have to guess what the boiling point is. Because it's following a trend. जितना बड़ा molecule होगा उतना ज़्यादा उसका boiling point होगा. तो probably बीच में roughly guess कर लो, तो मतलब कि इसका hard and fast rule नहीं है. So it's probably going to be close to 2000 degrees centigrade, something in the middle. इसकी combustion equation है, so that means when an organic compound burns, it produces carbon dioxide and H2O. Balance कर लो, so there are 5 carbons. Balance the easy ones first. 5, H कितने उस side पे 12 है, so this would be 6. So how many oxygens I've got? I've got 5 to 10. 10 plus 6, that's 16. तो एक यहाँ पे है, तो I need 15 oxygens over here. So 15 would be 7.5 से multiply करना पड़ेगा. So that's going to be 15 divided by 2. ये फिर से वो क्वेश्चन आया homologous Cs. What are the main characteristics of a homologous Cs? Number one, they have similar or same chemical properties. Number two, they have the same functional group. ठीक है. Number three, they have the same general formula. Number four, कि चौथा क्या था? They show trends in physical properties, although marks पूरे हो गए. तो they all show trends in, ये जैसा ऊपर था ना, they are showing a trend in physical properties. ठीक है. The melting points are slowly increasing. So they all show trends in physical properties. और एक पांचवा भी था कि successive members differ by CH2. ठीक है, we can ignore that. Explain why these are isomers. What are isomers? उसने कहा why they are isomers. क्योंकि दोनों का formula same है. They have the same, the molecules have the same molecular formula. But
अरेंजमेंट डिफरेंट है, ठीक है, द स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। वो कह रहे हैं इनका ना कोई और आइसोमर ड्रॉ करो। तो ये पहले वाले में ना व्हाट ही इज डन इज कि उसने the four carbon atoms in a line and he's put an OH group at the end. ये जो सेकंड वाला है ना इसमें ये CH2 है, two carbons in a line and then there's an OH, और इससे पहले ना दो CH3 की ब्रांचेस लगी हुई हैं, ठीक है, मतलब वो H's आप खुद ही इसके साथ पूरे कर लो। This one is CH2 अच्छा, so ये तो दो मैंने वही बना दिए। He's asking you to draw another isomer, तो आपने क्या करना है कि बस पोजीशन चेंज कर दो। It's at the end, so you can put it somewhere in the middle, और ये बाकी सारे H's हैं, you can draw the, ठीक है, that's what an isomer is। ये क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, so next one, he's given you calculate the maximum mass of that could be moles का क्वेश्चन है, वैसे वो कर लेते हैं कि किसा करोगे। एक के मोल्स पता लगेंगे, you will find the moles of everything। mass of one mole जो होता है ना, that is वो MR होती है, ठीक है। so he's given you the MR of glucose। तो ग्लूकोज का मास दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है, that's 72 grams। so you can obviously find moles का फॉर्मूला क्या होता है, that's mass divided by molar mass, which is 72 divided by what, 180। कितने मोल्स बन रहे हैं? What is 72 divided by 180? Point, 0.4. so 0.4 moles, right? तो ये मैंने कहा था एक के मोल्स पता लगते हैं और सारों के पता लग सकते हैं, ठीक है। ये 0.4 मोल्स, तो एथेनॉल और उसके मोल्स कितने होंगे? 0.8 होंगे ना, डबल है ना, अकॉर्डिंग टू द रेशियो, राइट। इज दिस क्लियर कि दोनों के पता लग गए? तो निकालना क्या था उसने? ही इज आस्किंग फॉर द, क्वेश्चन में क्या है, इज आस्किंग फॉर द मास ऑफ एथेनॉल, ठीक है। सो एथेनॉल की मास निकालनी है, तो मोल्स पता है, सो यू कैन फाइंड आउट द मास वुड बी व्हाट, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। मोल्स कितने हैं? दैट्स 0.8 multiplied by MR, which is 180। तो ये क्या क्या मास है ये, 0.8 इंटू 180? नहीं, 180 का 144. नहीं, पहली बात है 180 है ही नहीं उसकी MR, वो तो एथेनॉल है ना। Oh, एथेनॉल इज दो कार्बन, दैट्स 12 24, 6 हाइड्रोजन, सो 30 प्लस 16 दैट्स 46, ठीक है। तो इसकी MR जो है वो तो 46 है। 36.8. So we're getting 36.8 grams। सर फिर से एक्सप्लेन कर दे। देखो मोल्स में पहला वाला तो क्लियर है, मोल्स निकल है, उसने कहा 72 ग्राम्स ग्लूकोज था, राइट। यस। सिर्फ सो 72 ग्राम्स ग्लूकोज है, तो उसके मोल्स निकल है ना, वो क्लियर है। जी सर। तो मोल्स में हर क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होगा कि इफ यू फाइंड द मोल्स, एक के मोल्स पता लग जाएंगे ना, तो उसका मतलब है सारों के पता लग जाएंगे, ठीक है। रेशो से, रेशो क्या है इनका आपस में, 1:2 रेशो, 4. तो मतलब 1:2 है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। हाँ, तो मतलब 1:2 का मतलब वो डबल होगा, ठीक है। अगर ये 0.4 है तो वो 0.8 होगा, ठीक है। ओके। तो आपको एक के मोल्स पता लगे थे, उससे आपने बाकी दोनों के मोल्स निकाल लिए, ठीक है। और फिर उससे मांगा क्या था, वो था कि ही वाज आस्किंग फॉर द मास ऑफ एथेनॉल, ठीक है। तो एथेनॉल की मास जो है तो वो आपने तो वही, एथेनॉल का एमआर लिया। ओके सर, ठीक है, हाँ, समझ आ गया। ठीक है।
तो रिमेंबर ऑलमोस्ट हर मोल का क्वेश्चन है, इट्स गोइंग टू बी सॉल्व दिस वे। यू फाइंड द मोल्स, मतलब कुछ और टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन most of these questions would be solved. You find the moles of one thing and you'll be able to find out the moles of the rest. ठीक है। अच्छा, इधर क्या हो रहा है? पहले वो कह रहा है कि पेट्रोलियम है, उसको उससे इथीन फॉर्म किया। तो पेट्रोलियम से इथीन किस तरीके से बनता है, मतलब उसका क्या रिएक्शन है? हम्म फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हम्म, हाँ वैसे हो तो सकता है, लेकिन नहीं। इथीन छोटा क्रैकिंग। मॉल है, क्रैकिंग से। ठीक है। हम्म। तो जो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन थी ना, ये फ्रैक्शन डिस्टिलेशन थी, उसमें ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स जो आप होते हैं आपको बड़े मिलते हैं। ठीक है। तो उनको दोज आर क्रैक्ड and they are broken down into smaller pieces। ठीक है। तो ये क्रैकिंग है। ठीक है। लार्ज मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। तो पहला तो आप लिखोगे कि इसके अंदर क्रैकिंग होगी। ठीक है। तो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, तो it is heated under high temperatures and in the presence of a catalyst। temperatures क्या है? Greater than 450 centigrade। ठीक है, which is like Al2O3 SiO2 catalyst। ठीक है। so ethene gets produced। finally how do you convert ethene to ethanol? वो हाइड्रेशन होती है, वाटर ऐड कर देते हो इथीन में, डबल बॉन्ड में। हाइड्रेशन ऑफ इथीन इज डन। उसमें क्या कहते हैं? वाटर इज द रिएजेंट दैट्स एडेड। द कंडीशंस आर व्हाट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और फॉस्फोरिक एसिड कैटलिस्ट या एसिड कैटलिस्ट, और इसका प्रेशर होता है 60 एटमॉस्फेयर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन व्हाई एल्यूमिनियम, a reactive metal, takes so long to corrode। मतलब why does aluminum not react? Even though it's very reactive, it's higher up in the reactivity Cs, but it's very very unreactive। Alina, कोई idea कि why does it not react? सर उसके ऊपर मेटल लेयर होती है। मेटल नहीं, ऑक्साइड लेयर होती है, ऑक्साइड as लेयर। a which is tough, non-porous, nothing can go through it, and also very unreactive। अच्छा, ये फिर से वो स्टार्च का बनाना है। ये हमने कंडेंसेशन पॉलीमर्स किए थे कि 3 टाइप के कंडेंसेशन पॉलीमर्स किए थे, उनमें से दिस इज हाउ स्टार्च विच इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अ पॉलीमर वाज फॉर्म। ठीक है। तो आपके पास इस तरह के ढेर सारे मोनोमर्स लाइनअप होते थे, एंड दे वुड ऑल लिंक अप। इनके एच और ओ एच रिमूव होते रहते थे बीच में से। ओ एच किया, एच वाटर बनता जाता था। ठीक है। ओ एच इज रिमूव, H is removed, OH is removed, H is removed, OH is removed, H is removed। ठीक है। And they would all join up। तो सारे आपस में जुड़ना शुरू हो जाते थे। ठीक है। So that is what starch looked like, complex carbohydrate। खैर इधर वो कह रहे हैं कि वो such as cotton, लेकिन all complex carbohydrates kind of have the same structure। ठीक है। ये क्लियर है? जी सर। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गया। What are enzymes? They're biological catalyst।
2 मार्क्स का है, थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा। दे speed up the reaction and remain unchanged. I said name another substance which can hydrolyze proteins. ये प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस है, उसे का प्रोटीन जो है आपकी बॉडी के अंदर, दैट्स एंजाइम्स, दैट पेप्सिन होता है स्टमक में, दैट ब्रेक्स इट डाउन। तो ये मैंने एक्चुअली मिस किया हुआ है। वो किधर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हमने कहाँ पे किए थे? राइट एट द एंड, ठीक है। एक सेकंड, ये मैं अच्छा प्रोटीन्स कहाँ पे है? ये बिल्कुल एंड में किए थे प्रोटीन्स, पॉलीएमाइड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। तो प्रोटीन्स वर मेड फ्रॉम, ये अगला वाला किधर गया प्रोटीन? हाँ ये प्रोटीन। अच्छा नेचुरल पॉलीएमाइड्स जो थे, देवर, जो आपके नेचुरल पॉलीएमाइड्स थे, देवर प्रोटीन्स, ठीक है। अच्छा उसका मोनोमर जो था, दैट वाज अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड्स उसी तरह दे वुड स्टार्ट, all of them they would start linking up and they would end up forming proteins, ठीक है। अच्छा प्रोटीन्स का ये कि प्रोटीन्स जो है एक तो स्टमक के अंदर कहाँ पे लिखते हैं, इधर की साइड पे लिखते हैं। अच्छा एक याद रखें, प्रोटीन्स जो है ना, दे ब्रेक डाउन अगेन, ठीक है, दे आर ब्रोकन डाउन स्टमक के अंदर, दे आर ब्रोकन डाउन, इसको नीचे कर लेते हैं एक सेकंड। अच्छा स्टमक के अंदर दे ब्रोकन डाउन बाय पेप्सिन। हाइड्रोलिसिस का मतलब है वापस वो एच वापस आ जाता है और वो वापस रिवर्स हो जाता है सब कुछ। सो प्रोटीन्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पेप्सिन इन द स्टमक, और वैसे किससे हाइड्रोलाइज होता है ये जैसे आप बारबेक्यू वगैरह करते हो, दैट्स प्रोटीन्स, राइट। सो हाउ डू यू ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स? यू ऐड सम एसिड टू इट, ठीक है। वो जो उसको मैरिनेट करता है ना, दैट्स बेसिकली यू ऐड आइदर विनेगर टू इट, ठीक है, या लेमन जूस टू इट, ठीक है, यू ऐड सम सॉर्ट ऑफ एसिड टू इट, तो और डाइल्यूट एसिड प्लस हीट, उसको बॉईल करते हो स्लाइटली एसिडिक उसमें, सो द प्रोटीन वुड ब्रेक डाउन। उसके अंदर जितने भी लिंकेजेस होंगे ना, वो जो पूरा स्ट्रैंड होगा ना, दैट विल स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। बीच में वो वापस रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो देयर आर टू थिंग्स व्हिच कैन हाइड्रोलाइज अ प्रोटीन, one is enzymes in the stomach, the other one is HCl कर लो, उससे name another substance, so you have to be to dilute HCl plus heat, मतलब कंडीशन उससे नहीं पूछी, लेकिन that's what you're going to do, ठीक है। Is this clear? Yes, sir. Yes. और monomers क्या बनेंगे? What would happen if you hydrolyze a protein? It's going to form amino acids back again, ठीक है, it's going to form amino acid. अच्छा which technique could be used to identify individual monomers in the mixture? तो अच्छा ये amino acids को की जो identification होती थी ना, ये you studied this in the first chapter, that's chromatography. Chromatography जो थी ना, dyes को separate करती थी, it would also separate biological substances like sugar molecules, amino acids. Actually chromatography नहीं होती, there's a more advanced technique which is known as electrophoresis, which is somewhat similar to chromatography. So लेकिन अगर generally speaking it's going to be called chromatography at this stage. अच्छा proteins contain the amide linkage, name a synthetic macromolecule which contains the, अच्छा वो और कौन से polyamides होते हैं other than proteins?
कोई आइडिया अदर मॉलिक्यूल विच अदर पॉलीमर उसमें नायलॉन वगैरह था, ठीक है, जो आपका पॉली एमाइड था ना। द अदर एग्जाम्पल वॉज, यहाँ पे लिखा भी होगा, हाँ, नायलॉन, केवलर वगैरह, ठीक है, ये सब थे। तो नायलॉन इज सिंथेटिक, या यू गॉट केवलर, बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह के अंदर। अच्छा, व्हाट इज द साइंटिफिक टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब पॉलीमर्स दैट डू नॉट ब्रेक डाउन इन लैंडफिल साइट्स, जो नेचुरली ब्रेक डाउन नहीं करते? कंडेंसेशन पॉलीमर्स जितने भी हैं ना, दे ऑल ब्रेक डाउन नेचुरली, ठीक है, दे ऑल गेट हाइड्रोलाइज, क्योंकि वाटर ही ऐड करना है ना, वाटर तो बीच में वाटर वापस ऐड हो जाए तो वो वापस टूट जाते हैं, ठीक है, तो वाटर इज एवरीवेयर। तो इसका मुझे बताओ कि व्हाट इज द नेम गिवन टू पॉलीमर्स दैट डू नॉट ब्रेक डाउन? The idea that's non-biodegradable. ये आपके एडिशन पॉलीमर्स होते हैं, दे आर ऑल नॉन बायोडिग्रेडेबल। और एडिशन पॉलीमर बनाया हुआ है, ठीक है, वो कह रहा है कि इसका फाइंड आउट द मोनोमर ऑफ दिस। सो द मोनोमर इज कि वो लिंकेजेस खत्म करो, और CH2 था, CH, और ये नीचे जो भी है C6H5। तो इस तरह के रिपीट हुए जा रहे हैं ना। तो व्हाट यू गोइंग टू डू इज कि पहले तो मैं पूरा उसको एक्सटेंड करके वैसे ही, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन, इसको अच्छा ये इस तरह का पॉलीमर होगा। आप क्या करोगे, बीच में से ना लिंकेजेस वापस खत्म कर दो, ठीक है, एंड द डबल बॉन्ड वुड शो अप अगेन, ठीक है, बीच में डबल बॉन्ड वापस ले, दैट्स गोइंग टू बी योर मोनोमर। सो योर मोनोमर इज एन एल्कीन। तो ये ड्रॉ करने को उससे कहा था, ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो आपने बस ये लिंकेजेस सारी खत्म करनी थी और बीच में डबल बॉन्ड वापस डाल देना था। अच्छा, डिस्क्राइब हाउ यू कुड डिसाइड from its molecular formula whether a compound is a carbohydrate. तो कार्बोहाइड्रेट में ना दो चीजें होती हैं, इट्स अ 2 मार्क क्वेश्चन बाय द वे। अच्छा, ये भी हम ऐड कर लेते हैं, हाउ डू वी नो इट्स अ कार्बोहाइड्रेट? इट्स गॉट टू थिंग्स, जैसा ग्लूकोज होता है ना, द कार्बन, it's going to have carbon, hydrogen and oxygen atoms, और इसमें ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा ना, दैट्स गोइंग टू बी 2:1, ठीक है, दैट्स जैसा ग्लूकोज वगैरह ना, दैट्स ऑलवेज द केस। वो मैं इधर उसको लिख भी देते हैं यहाँ पे, योर कार्बोहाइड्रेट्स ऑलवेज हैव an hydrogen to oxygen ratio is always 2:1. One example is glucose, C6H12O6. So plants can change the sugar glucose into starch, which is a more complex. What type of reaction is this? Condensation है, ठीक है, जहाँ पे जितने भी polymers बनते हैं, condensation polymers. So it's a condensation reaction. अच्छा, next है the fermentation of glucose. ये fermentation आ गया glucose का। तो वो कह रहा है कि it's in the apparatus shown below. After a few days, the reaction stops. A 12% solution of ethanol has been produced. The enzyme zymase catalyzes the anaerobic respiration of the yeast. Explain the term respiration. तो क्या होता है respiration? 2 marks का।
but it's the process in which biological substances produce energy. अच्छा, अब दूसरा पार्ट जो है ना वो ये कौन सा पेपर है इसका, वो देखना है कि इट्स अ 2 मार्क क्वेश्चन, तो रेस्पिरेशन पे लिखना क्या है, ठीक है, इसका बाकी पार्ट है W13 QP कितना, लेट मी ओपन दिस पेपर, 2 मार्क्स देख लेंगे उसका क्या है, ठीक है, 0620। अच्छा, MS32, 1 सेकेंड, see it is opening, just a second. अच्छा, probably the last, this is the organic question. अच्छा, मतलब सिंपल डेफिनेशन थी, काफी हद तक हमने सही लिखा है, उधर लिखा हुआ है कि इट्स द, बस उसने लिखा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, सेल्स। अच्छा, उसने जो वर्ड यूज किया है सेल, 1 मार्क दिया है सेल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, तो मैंने बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस लिखा हुआ है, या मेरे ख्याल से इसको चेंज ही कर लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सेल्स कर लेते हैं, ठीक है। सेल्स प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम और obtain एनर्जी फ्रॉम फूड, obtain होना चाहिए वैसे, ठीक है, मेरे ख्याल से हमारे वाले पे भी मार्क्स मिल जाते हैं, ही जस्ट वेंट फॉर अ वेरी जेनेरिक डिस्क्रिप्शन। अच्छा, फर्मेंटेशन में क्या होता है, यीस्ट ऐड करते हैं, व्हाट यू गेट इज एथनॉल व्हिच इज C2H5 OH, और साथ क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों के दो दो मॉलिक्यूल्स। तो एयर मस्ट बी केप्ट आउट ऑफ द फ्लास्क, और क्यों फ्लास्क इज टू हैव एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इसका भी चेक कर लेते हैं कि उसने क्या दिया है, वो बाकी स्क्रीन खुली हुई है, हाँ वही है, क्योंकि अगर एयर होती ना तो एथेनॉल विल गेट ऑक्साइज टू एथेनोइक एसिड, तो यू विल गेट विनेगर इंस्टेड, ठीक है। सो यू हैव टू कीप एयर आउट ऑफ द फ्लास्क। अच्छा, अगले वाले में एस्टर फॉर्म करना है, तो यूज इंफॉर्मेशन, यूज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मिथाइल ब्यूटेनोएट, तो दैट्स प्रीटी इजी कि आपने क्या करना है, दोनों के फंक्शनल ग्रुप आमने सामने होने चाहिए, सो द मेथनॉल मॉलिक्यूल मस्ट बी ड्रॉन द अदर वे अराउंड, और बीच में से H और OH, अच्छा बीच में से H और OH रिमूव हो जाएंगे, तो ये चलेगा और उनको जोड़ दो, ठीक है, यू हैव अ कंडेंसेशन रिएक्शन एंड दैट्स इट। So this is methyl butanoate. And the next one is कि the equation represents the hydrolysis of a naturally occurring ester. Which substance in the equation is an alcohol? Put a ring. तो मतलब ये वाला alcohol है, OH है, उसने कहा कौन सा alcohol है, ठीक है, that's it. अच्छा, is the alkyl group in this ester saturated or unsaturated? Give a reason for your choice. तो alkyl group जो होती है वो कार्बन की चेन होती है, ठीक है। alkyl group जो होता है that's उसका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो CnH2n
+1 होता है इफ इट्स सैचुरेटेड। ये सारे अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड सब में आ रही होती है, ठीक है। अल्कोहल में भी आ रहा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आ रहा होता है, ठीक है। ये जो साइड पे कार्बन चेन निकली होती है, दैट्स नोन एज द अल्काइल चेन, ठीक है। तो दैट इज नॉर्मली CnH2n+1। तो अगर वो सैचुरेटेड डबल बॉन्ड होगा ना, तो एच कम होते जाएंगे उसमें, ठीक है। तो नॉर्मली इफ इट्स सैचुरेटेड इट्स CnH2n+1। तो अगर मेरे पास C17 होगा, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एज कितने होंगे, डबल करके दैट्स 34 +1 दैट्स 35। तो इसका मतलब वही आ रहा है, सो दैट मीन्स इट इज सैचुरेटेड, ठीक है। यानी इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। और हर दफा अगर डबल बॉन्ड ऐड करोगे तो 2 एज कम हो जाते हैं, ठीक है। अगर इस चेन में देयर वाज अ डबल बॉन्ड, तो इसमें 2 एचेस कम हो जाते हैं। फिर वो कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फार्मूला। ये वो सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड है। एंड व्हाट इज द मेजर यूज फॉर दिस कंपाउंड। तो टाइप ऑफ कंपाउंड क्या, इट्स अ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और वो मैंने कहा था कि ये सोप्स हैं, बेसिकली इट्स यूज्ड एज सोप्स, ठीक है। और यहाँ पे फाइनली यू हैव टू मेक a protein, ठीक है। amino acids are given, the two amino acids that are given, you have to do a condensation reaction। OH है और यहाँ पे N के साथ 2 H's है। and then you have another molecule, and it also has carboxylic acid और N के साथ 2 H's, one of them is shaded। तो उससे क्या है, you may represent amino acids by the formula 3 monomer units। तो उसके बाद फिर से रिपीट कर लेते हैं। you've got, he said कि 3 monomer units होने चाहिए। अच्छा, same thing would happen, OH and H will be removed। OH किया, इधर से H किया, OH चला गया इधर से, and they would all start joining up, ठीक है। मेक श्योर यू लीव अ कंटिन्यूएशन बॉन्ड एट द एंड। और ये जो बीच में है ना, दैट्स योर एमाइड और पेप्टाइड लिंक। ये हर दफा इधर बीच में बन रहा है, ठीक है। चलो, ये क्लियर है। यस सर। बस ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके, टेक केयर। अल्लाह हाफिज।